गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्सक्रीशन। हम लोग जानेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी यूनिट, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो ये डायग्राम बहुत ही टिपिकल है, बट आपको बहुत ही इजी वे हम बताएंगे हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट। बट बिफोर मूविंग अहेड, first we come to know what is excretion. So what is excretion? Excretion क्या होता है? Actually there is metabolic activities inside our body. हमेशा हमारे बॉडी में क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मीनिंग होता है कि देयर इज फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ anything in our body, means reactions which are going inside our body, that is called as metabolic activities. And the result of these metabolic activity is generation of nitrogenous waste. What happens? There is generation of nitrogenous waste. Now what is the problem with this nitrogenous waste? Actually these nitrogenous waste, they are very harmful for our body. These nitrogenous waste are very harmful for our body, and if they are harmful for our body, obviously it has to be eliminated from our body. यानी कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। अगर उस नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम जानना चाहें तो दैट इज यूरिया। ठीक है, this is the nitrogenous waste which is generated inside our body, and that urea is very harmful for our body. That's why it has to be eliminated from our body. इसको बॉडी से निकालना, बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। और इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड हम ये जानेंगे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है जो सिंगल सेल्ड है, हाउ दे रिलीज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट, दिस नाइट्रोजनस वेस्ट। देयर इज सिंपल प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका सारा प्रोसेस जो है, सारा काम होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। बट in the human beings that diffusion is not sufficient, and we have a special system which is called as excretory system. We have special system to eliminate these nitrogenous waste which is called as excretory system. Okay, now what is excretory system and what are the various organs associated with this excretory system, we are going to discuss here. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्या है, आपसे कई बार पूछता है एक्सक्रीटरी सिस्टम और आप एक्सक्रीटरी यूनिट बना के आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी यूनिट बोलता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना के आ जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, बोर्ड में क्वेश्चन यू हैव टू रीड केयरफुली। whenever it will ask for excretory system, whenever it will ask for excretory system, you have to draw the figure 6.13 which is given in your book, जो कि आप क्लास 7 से बनाते आ रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज, and a tube like structure which originates from kidney is called as ureter. After that, that ureter leads to a pouch like structure which is called as urinary bladder. And urinary bladder opens where it opens outside, that is called as urethra. So
A very simple question, 1 mark question. What are the organs associated with excretory system? You have to tell that there are pair of kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. Diagram is very simple. आप बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं. What you have to do? You have to draw beans like structure which is called as kidneys. इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, दो ड्रॉ करना है, दोनों ही साइड में आप ऐसे बना लीजिए. After that, what you have to do? Simply take a tube from here, draw a tube like structure from here, and in the same way from here also. Okay. Now draw pouch like structure which is called as urinary bladder. We know that. Just see the step by step process. ठीक है. In your book you will see that it's very hard. आपको करना कुछ नहीं है, simply और यहाँ बीच में आप just draw 3 lines. Just draw 3 lines and give the connection to the each kidney from these lines. Okay, simply just draw like this. In the same way from this tube also. In the same way in this way also. And here also. It's very simple. Okay. Now you will get the marks of correct labeling. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 7 से आप लोग लेबल करते हुए आ रहे हैं. आपको करेक्ट लेबलिंग के ही मार्क्स मिलते हैं. सो नाउ वी विल लेबल इट. These are the kidneys. So there are 2 kidneys on the left side and right side. You may write left kidney or right kidney also, but simply write down kidney. The tube which is originating from the kidney and carries the urine to the urinary bladder, that tube is called as ureter. Okay, and this structure where the urine collects, that is called as urinary bladder. And the opening from this urinary bladder, this is called as urethra. Note down one thing. Whenever you are doing labeling, you make a mistake between ureter and urethra. So just note down the difference. This is the tube which is originating from kidney, that is called as ureter. And the tube like structure which is originating from this urinary bladder, that is called as urethra. So don't get confused in the labeling. अक्सर आप लोग यही गलती करते हैं, यूरेटर को यूरेथ्रा या यूरेथ्रा को यूरेटर लिख देते हैं. सो बी केयरफुल व्हाइल लेबलिंग. रही बात इन दोनों ट्यूब्स की, तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग रेनल वर्ड यूज करते हैं. रेनल वर्ड का मीनिंग होता है किडनी. ठीक है, रेनल वर्ड यूज करते हैं. आगे भी अभी आप पढ़ते जाएंगे तो बार बार रेनल वर्ड आएगा. रेनल का मीनिंग होता है किडनी. तो यहाँ पर ये जो दो ट्यूब्स आई हुई हैं, one is artery and another is vein. So just write down label one tube like structure, that is called as renal artery, and another tube to renal vein. Okay, so this is your excretory system. Please be noted that this is your excretory system. और आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं? एक्सक्रीटरी यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं. जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, तब आप ये बना के आ जाते हैं. दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉट एक्सक्रीटरी यूनिट. क्लियर? सो आई थिंक देयर इज नो डाउट. वी आर मूविंग अहेड with the diagram of excretory unit. Okay, so this is your excretory system. Now the main functional unit of this excretory system means how this excretory system works. So renal artery carries blood to the kidney
and there are very small structures which are called as nephrons, and these nephrons are the functional unit of kidney. So 1 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नेफ्रॉन। इसको नोट कर लें आप लोग, व्हाट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है ये जान लीजिए पहले आप। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड, जैसे आप सेल को डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इन द सेम वे आप नेफ्रॉन को भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या सिंपली यू मे राइट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Okay, so what is nephron? It is functional unit of kidney. These nephrons are in very large number and they are present in the kidney. So these nephrons, they are carrying out the filtration of blood. जो कि ब्लड में सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड रेनल आर्टरी से फ्लो करके किडनी में आ रहा है, और किडनी में क्या है हमारा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, दे आर फिल्टरिंग आउट द ब्लड। ठीक है, दैट्स व्हाई द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है सारा फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज नेफ्रॉन। गॉट इट? सो नेफ्रॉन क्या है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू ड्रॉ द नेफ्रॉन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नेफ्रॉन को किस प्रकार से ड्रॉ करें। आई एम गोइंग टू show you the easiest way to draw the nephron, which is the functional unit of our kidney, which is the functional unit of excretory system. You may write both, it is the functional unit of kidney or it is the functional unit of excretory system. Now how to draw the nephron, just see carefully. First, what is nephron? It is the functional unit of kidney, या इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, एक मैं आपको बेसिक डायग्राम बता दे रहा हूं, और इस बेसिक डायग्राम के आधार पर जो है आप एक्चुअल डायग्राम बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक उल्टा सी के जैसा स्ट्रक्चर बना लेना है। सभी लोग बना लेंगे, आई थिंक इट्स वेरी इजी, सब लोग बना लेंगे। इसको बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा एस के जैसा बना लेना है, और इसके बाद यहां से आप यू ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा यू। ठीक है, यू लाइक स्ट्रक्चर, अगेन जस्ट मेक एस लाइक स्ट्रक्चर, कोइल्ड स्ट्रक्चर हेयर एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, इसको डबल लाइन में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी ये सिंगल लाइन में आउटलाइन हमने ड्रॉ किया है, जब आप एक्चुअल में इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डबल लाइन में ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक है, तो हमने ऊपर क्या ड्रॉ किया था, सी लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, 2 लाइन में हो गया। और फिर क्या किया है आपने, यहाँ पर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हमने डबल लाइन में बना दिया। आफ्टर दैट यू के जैसा बनाना है, तो आप यहाँ पर यू बना दीजिए, बट ध्यान देना है कि सारा का सारा किस में होगा, डबल लाइन में होगा। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था, तो फिर से यहाँ पर इसको क्वाइल्ड कर दीजिए इस तरह से। फिर आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, तो क्या करना है, उस स्ट्रेट लाइन को भी डबल लाइन में करना है। ये आपका हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आप अपने बुक में देखेंगे इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इट्स वेरी इजी एंड इट कैरीज 5 मार्क्स। 3 मार्क्स का आपका डायग्राम रहता है, इसके साथ में आपको अटैच्ड क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल 5 मार्क्स का आप बनता है, और इस पूरे चैप्टर में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नेफ्रॉन को ड्रॉ करना है। नाउ अभी इसके हम लोग लेबलिंग करेंगे। इसके बाद एक चीज और होती है, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग में ये जो है ऊपर सी के जैसा कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज बोमेन्स कप, या कैप्सूल भी कहीं कहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फर्स्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज पीसीटी, एंड दिस यू लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप।
and again there is this coiled structure that is called as DCT, and this tube like structure is called as collecting duct. ठीक है, ये इसकी बेसिक बेसिक लेवलिंग हो गई। अब जो इसके ऊपर और आपको ड्रॉ करना है जिससे आप कंफ्यूज होते हैं, जो आपकी बुक में बहुत सारा नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर दिया है, उस नेटवर्क को हम लोग जानेंगे। तो अभी आपने उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था रेनल आर्टरी और रेनल वेन। तो वो रेनल आर्टरी से जो है, जो आर्टरी है एट्रियोस, वेरी छोटी छोटी आर्टरीज इस कप में आती हैं। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये हमारा रेनल आर्टरी आ रहा है एंड इट फॉर्म्स नेटवर्क, मतलब एकदम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, वेरी मच क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर यहाँ से स्क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, इसके ऊपर से पूरे से पास करके कहीं पर भी इसको लीव कर देना है। गॉट इट। आप चाहे तो इंटर कनेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, इधर उधर जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ दीजिए, नहीं भी जोड़ते हैं बट स्टिल इट इज 100% करेक्ट एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो अभी इसका लेवलिंग कर लेते हैं। ये आपका रेनल आर्टरी आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ओनली दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, बस इतना सा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब हम लोग जान लेते हैं कि यूरिन बनता कैसे है, यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। तो रेनल आर्टरी जो यहाँ पर आकर के ये ग्लोमेरुलस बना रहा है कप, कप में, इस कप के अंदर, कप के बाहर में आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें ब्लड जो है हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में फ्लो करता है। जब ये फ्लो करता है तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड हमारा सारा फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो सारी फिल्ट्रेट जिसको बोलते हैं, ये सारा चीज इस कप में इकट्ठा हो जाता है, और ये फिल्ट्रेट जो है इस स्ट्रक्चर से ऐसे ऐसे पास होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये फिल्ट्रेट का अमाउंट हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए क्या है कि ये ग्लोमेरुलस का जो आउटलेट पार्ट है, दैट इज रेनल आर्टरी वाला पार्ट है, ये जो इसके ऊपर से जा रहा है, ये क्या करता है, इस सारे स्ट्रक्चर में से, यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनली और डीसीटी में से उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि अगर हम दिन भर यूरिन यूरिन प्रोडक्शन की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर इतना यूरिन प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं तो दैट फिल्ट्रेट, यहाँ पर जो फिल्टर होकर के इकट्ठा हो रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 100 लीटर, 100 लीटर्स के बराबर हो रहा है। लेकिन दिन भर में यूरिन कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 2 से 2.5 लीटर हो रहा है। तो वो क्या है, वापस जो है 98 लीटर्स कह सकते हैं, या 96, वट एवर इट इज द अमाउंट, वो क्या होता है, वो सारा इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है, रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो लास्ट में रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो बचेगा वो सारा जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली यूरिन। और वो यूरिन जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो आपने यूरेटर देखा, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, उस यूरेटर से पास होकर के वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। एंड व्हेन देयर इज अर्ज ऑफ पासिंग यूरिन, देन वी पास द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। Clear? I hope so. This class is very useful for you because that today's topic contains 5 marks. और यहाँ से जो important questions हैं, that is only the draw the diagram, इस तरह से question आता है, draw or label the diagram of nephron, which, या what is nephron, तो आपको लिखना है it is a functional unit of excretory system, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसके बाद आता है ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर एंड लेबल इट्स वेरियस पार्ट्स। इस टाइप से ये क्वेश्चन अटैच होकर के आता है एंड दैट कैरीज ऑफ 5 मार्क्स। क्लियर है? आई होप कि दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।